So listen students, in the previous class, I explained to you about balance of trade and balance of payment. I also explained the difference between balance of trade and balance of payment. As you know that balance of trade is the difference export minus import, but only for visible items. That means only for goods. But balance of payment is also difference between export minus import, but for both visible items plus invisible items. That means goods and services. So balance of payment is a broader concept as compared to balance of trade. I also explained you that balance of payment has two main account, current account and capital account. Now, these accounts has two sides, as you all know that being a commerce student. So each and every account has two sides. One is credit side, another one is debit side. So current account has two main sides, credit side and debit side. Likewise, capital account also has the same credit side and debit side. So these both current and capital account has same credit as well as debit sides. So how we know that this value is added or entry into the credit side or debit side? So listen carefully. Sometimes students made mistake in this because this is not a domestic level, because this is considered as an international forum. So anything that leads to inflow, that leads to inflow or receipts from rest of the world, inflow or receipts from rest of the world, their entries are entered into credit side. अगर आपने बाहर से कुछ भी रिसीव्ड किया है तो उसकी एंट्री आप क्रेडिट साइड में करेंगे. लाइकवाइज अगर आपने बाहर वालों को कुछ पे किया है, आउटफ्लो हुआ है, उसके कारण आपसे देश का पैसा बाहर चला गया है, आउटफ्लो हुआ है, दैट मीन्स यू पेड, पेमेंट, आपने पेमेंट्स किया है, तो दैट विल बी एंटर्ड इनटू डेबिट साइड. सो अब आपने इतना सोचना है कि जो भी एक्टिविटी हुई है, इफ फ्रॉम दैट एक्टिविटी, listen carefully, from that activity, if dollar came in your country due to that activity, that is entered into credit side. And from any activity you do, and from that dollar went outside from your country, or outflow of the currency, foreign exchange, that is entered into debit side. तो कुछ कुछ सिंपल मैं आपको इतना बता दूं कि आप ऐसे सोचना कि जब आप सपोज करो आपके पापा की जब सैलरी आती है, तो जब बैंक से मैसेज आता है, वो मैसेज क्या लिखा होता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय रुपीज, जो भी अमाउंट आया है, तो पैसा इनफ्लो हुआ है. सो दैट्स व्हाई देयर एंट्री इज इनटू क्रेडिट साइड. और
अगर आप जब एटीएम जाते हो और या कोई शॉपिंग करके लाते हो करते हो, तब भी मैसेज आता है आपने एटीएम से पैसे निकाले, फिर मैसेज आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड, इट मींस आपके यहां से पैसा चला गया। तो ऐसे ही देश से सोचना आप, इसको अकाउंट्स के टर्म में रख के देखते हैं, कई बार बच्चे तो उस वक्त मिस्टेक कर देते हैं। तो हम क्योंकि अकाउंट्स में एक वन साइड पेमेंट होता है, अपने देश का ही अंदर अंदर होता है, तो हम उसमें क्रेडिट डेबिट को अलग अलग रखते हैं। लेकिन यहां पर हमारी जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये। तो अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे आपकी कंट्री में मनी का इनफ्लो हुआ है, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करनी है। और अगर उस चीज से मनी का आउटफ्लो हो रहा है, देन यू विल हैव टू एंटर दैट इनटू डेबिट साइड। नाउ अब इसके बाद मैंने आपको एक और भी टर्म्स में बताया था कि ये जो करंट अकाउंट है, इस करंट अकाउंट की 3 मैंने आइटम्स आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, एंड वो थे आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये मैंने आइटम्स बताए थे। नाउ रोहिणी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एंड रोहिणी टेल मी, if we export goods, then naturally this is a current account item. Now which side we should entry this export? It is credit side or debit side? Sir, credit side. Credit side, absolutely right. It will be entered into credit side because export से मनी हमारी कंट्री में आएगा, हमने गुड्स भेजी हैं और हमारे उससे क्या हो गया, डॉलर हमारी कंट्री में इनफ्लो हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी एंटर्ड इनटू क्रेडिट साइड। तो एक्सपोर्ट इज क्रेडिट साइड आइटम ऑफ करंट अकाउंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सो इंपोर्ट अगर आपने इंपोर्ट किया तो दैट विल बी एंटर्ड इनटू डेबिट साइड, बिकॉज इंपोर्ट करने से अब आपने गुड्स इंपोर्ट कर ली और आपको अब रिटर्न में करेंसी देना है, सो करेंसी अब आपका मनी का आउटफ्लो हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी एंटर्ड इनटू डेबिट साइड। लाइकवाइज सर्विसेज के लिए भी आपको ऐसे ही मेंशन करना है। नाउ द सपोज रोहिणी अगेन टेल मी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड, आपने यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड किए हैं, सपोज करो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपको ट्रांसफर्स मिला, सो वेयर यू विल एंट्री, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड? Sir, credit side. क्रेडिट साइड। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड, transfers received will be entered into credit side. Likewise, if the same word is unilateral transfers paid, so it will be entered into debit side. So this is the concept where we will enter debit side or credit side. Just think as your bank ATM. So आप इतना देखो कि आपके हमारा देश एक एटीएम है, उसमें पैसा अगर आया है तो क्रेडिट साइड, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, और अगर उससे पैसा बाहर जा रहा है तो फिर वो डेबिट साइड। और ऐसे 100% आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको एक शीट दिखाने जा रहा हूं, सो जस्ट अ मिनट। सो लुक स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर of your balance of payment account. Just I explained to you about it. So balance of payment, listen, balance of payment is a typical business account, is based on double entry system which contain two sides, credit side as well as debit side. So any transaction which brings in foreign exchange is recorded on credit side. सो अभी क्या ट्रांजेक्शन में ब्रिंग्स इन हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मींस हमारी कंट्री में विदेशी पैसा आएगा, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी। वेयर एज एनी ट्रांजेक्शन दैट कॉजेज अ कंट्री टू लूज फॉरेन करेंसी, दैट मींस आपका डॉलर चला गया यहां से दूसरी कंट्री में चला गया,
तो that will be added entered into debit side. So now these are the items that are recorded in debit or credit side. So current account items. So current account items are export of goods. Look at this. This is credit side item. Credit side में कौन कौन सी item आएंगी? Export of goods, export of services, and unilateral transfers, just like gifts, remittances, or indemnities received from the foreigners. तो ये received है यहाँ पर. और just like if we opposite side, तो this is current account item imports of goods, import of services, and unit transfers paid to. So these are the current account items that are credit side and debit side items. Now capital account items. So capital account items, just like any capital receipts. Any capital receipt, now it is received, so receipt is entered into credit side, just like borrowings from the abroad. अब मान लीजिए आपने वर्ल्ड बैंक से $100 बिलियन उधार ले लिया, तो ये बोरोइंग किस साइड में आएगा? तो नेचुरली इट विल बी एंटर्ड इनटू द क्रेडिट साइड. आखिर मनी तो आया है, बेशक हमारे पास इसका नुकसान है, हमने उधार लिया है, हमको रिपेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो नहीं मैटर हमको इतना देखना है. हमको ये देखना है बस करेंसी हमारी कंट्री में आई है फॉरेन करेंसी, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट साइड आइटम्स. लाइक कैपिटल रिपेमेंट बाय फॉरेनर्स. अब मान लीजिए कैपिटल रिपेमेंट हुआ है फॉरेनर से, हमने किसी को पैसा दिया था, अब उसने रिपे कर दिया. सपोज करो हमने बांग्लादेश को कुछ पैसा उधार दिया था, तो उसने अब रिपेमेंट कर दिया, तो दैट इज आल्सो एंटर्ड इनटू क्रेडिट साइड अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. नाउ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड. अब बाहर से इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे कंट्री में, तो जस्ट लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी कंट्री में हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल अकाउंट एंड इट एंटर्ड इनटू क्रेडिट साइड आइटम. जस्ट लाइक डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज हो जाए, तो भी वो हमारा क्रेडिट साइड है. डिक्रीज कैसे हो गया रिजर्व? इसका मीनिंग है कि हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो अब बाहर से हमें कुछ चीजों का जो डिफरेंस है वो कम हो गया है. दैट मींस अब सपोज करो इसमें कुछ डिफरेंस है ये कि हमारा जो रिजर्व है वो कितना है. हम जैसे सपोज करो मैं से बताऊं कि आपको, जैसे एक कंट्री का हमारे पास था इतना पैसा $100, अब हमारे पास ये था पैसा जो हमको हमारे पास रिजर्व है, अब हमें दूसरों को पे कितना करना पड़ेगा उसका डिफरेंस देखा जाता है, तो इसलिए हम उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, तो भी वो हमारी क्रेडिट साइड आइटम है. सो दीज आर द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करंट अकाउंट आइटम एज वेल एज current account and capital account. Now which type of questions will be in your exam for this? So just so students, read this question number 10 carefully, and you have to tell me after reading this that first of all you have to mention which account is to be recorded and which side. So first of all you have to tell me the sub account, whether it is current account or capital account, then on which side. So read, I'm giving you 2 minutes to read this carefully, then we will discuss the answers of this. Unmute yourself, tell me the answer of first one. Investment to abroad. सर ये क्रेडिट साइड पे होगा. ओके, क्रेडिट साइड होगा. इन्वेस्टमेंट पर उससे पहले बताइए कौन सा अकाउंट है ये, इज इट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट? सर कैपिटल. कैपिटल. सो बेटे देखिए, वेरी गुड, दिस इज अ कैपिटल अकाउंट.
item, capital account item, and it will be recorded into debit side. डेबिट साइड. अब रीजन क्या है? क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है. आउटफ्लो, इट इज आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड है, तो आउटफ्लो ऑफ करेंसी हुआ. देखिए, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, हमने इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में किया है, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, गुड्स नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट में. और डेबिट साइड, अब रीजन है बिकॉज एज इट इज ए आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू अब्रॉड, तो इट इज ए आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू अब्रॉड. इस तरह से आप रीजन दे सकते हैं. सो गुड. नाउ चेतना, कैन यू टेल द अनदर आंसर? इंडियन इन्वेस्टर्स बोरो फ्रॉम अब्रॉड. सर क्रेडिट साइड होगा कैपिटल अकाउंट का. ओके, सो कैपिटल अकाउंट है, ये तो कंफर्म हो गया बिकॉज इन्वेस्टर्स बोरो फ्रॉम, बोरोइंग है. अब बोरोइंग है तो ये इट विल बी कैपिटल अकाउंट आइटम. नाउ कैपिटल अकाउंट है, बोरोइंग फ्रॉम, बाहर से आया है, तो पैसा तो कंट्री में आ गया, तो इट विल बी इन क्रेडिट साइड आइटम एज इट इज इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी टू इंडिया. तो इस तरह से आपको पता करना है. ठीक, गुड. नाउ द थर्ड वन, सर्विसेज गिवन बाय ब्रिटिश एयरवेज इन इंडिया. ब्रिटिश एयरवेज इंडिया में सर्विसेज दे रहा है. जैसे अब यहां से आप बाहर जाना चाहते हो तो ब्रिटिश के प्लेन में बैठ के आप चले गए हो. सो हु वांट्स टू टेल दिस आंसर? यस चेतना, टेल मी. सर डेबिट साइड करंट अकाउंट. करंट अकाउंट. तो पहले तो हमें यही बताना है कि वेदर इट इज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो इट इज करंट अकाउंट. व्हाई इट इज करंट अकाउंट? बिकॉज इट इज सर्विसेज एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इनटू करंट अकाउंट. सो करंट अकाउंट में मैंने फिर से कहा, तीन आइटम्स आते हैं आपके पास, गुड्स आती हैं, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. सो करंट अकाउंट ये तो कंफर्म हो गया. अब सर्विसेज ब्रिटिश एयरवेज ने दी है. आपने कौन सी साइड बोला बेटा इसको? साइड बोलो बेटा इसकी. सर डेबिट. डेबिट साइड. वेरी गुड. डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी. अब क्यों होगी डेबिट साइड में एंट्री? क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज है, तो कंट्री से हमारे से आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, तो दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड इनटू डेबिट साइड. गुड. एंड द नेक्स्ट वन, रिपेमेंट ऑफ लोन बाय इंडियन गवर्नमेंट टेकन फ्रॉम यूएसए. अब यूएसए से हमने लोन लिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, वो हमने रिपेमेंट कर दिया. सो हु वांट्स टू टेल? ओके चेतना, गो अहेड. सर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. यस, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. रीजन सेम, डेबिट साइड. नेक्स्ट वन, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई फ्रॉम इंग्लैंड. अब एसबीआई का ब्रांच है इंग्लैंड में, उसने प्रॉफिट अर्न किया है, तो वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड? हु वांट्स टू टेल? यस चेतना, ओके. सर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. यस, वेरी गुड. इट इज करंट अकाउंट है. करंट अकाउंट क्यों है? क्योंकि बैंक जो देगा वो सर्विसेज होती है. बैंक हमेशा जो काम कर रहा है, बैंक की जो काम करने की फंक्शन है उसको सर्विसेज बोलते हैं. तो सर्विसेज करने से उसको प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट उससे मिला है, तो ये किस अकाउंट में आएगा? दिस विल बी इनटू रिकॉर्डेड इनटू क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे मनी इनफ्लो हो रहा है. ठीक. ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड. अब आपका कोई रिलेटिव है, बाहर है, आपने उसे कुछ पैसा बाहर भेज दिया है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इनटू. यस चेतना. सर करंट अकाउंट डेबिट साइड. Yes, it is current account debit side. So these are the questions that will be in your exam. So you will have to write just three main concepts. First, tell the name of the account. Second, side of the account. And third, reason for. So reason, without reason आप नहीं marks मिलेंगे आपको.
So make sure you know the reason for this. So that's it for today's class. Thank you very much. If you have any doubt, you can ask.